Hello friends, in the previous seminar we already discussed some parts of elementary ideas of nanostructure, its introduction and in history of nanotechnology and nanoparticles in nature, and some parts will be discussed. Synthesis of nanomaterials, that means how can construct or how can obtain nanoparticles from the bulk materials. There are the two method of finding the nanomaterial from bulk metal. First, top down approach. Top down approach refer to successive cutting of a bulk material to set nano size particle. That means cutting of bulk material to set nano size particles. Let us suppose this is a bulk material, and the cutting of bulk material into two size, and then cutting materials into nanomaterial size. It is a bulk material. This is a powders or clusters. It is a nanoparticles in size. सो टॉप डाउन अप्रोच ऐसा अप्रोच है जिसमें मटेरियल्स की कटिंग करके उसको नैनो साइज में, नैनो पार्टिकल्स की जो साइज होती है उस साइज में पार्टिकल्स को प्राप्त किया जाता है. नेक्स्ट अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच. Bottom up approach refer to build up materials from the bottom atom by atom. That means यहाँ से बॉटम अप्रोच में जो एटम से क्लस्टर बनाया जाता है, फिर क्लस्टर के बाद उसको नैनो पार्टिकल बनाया जाता है, फिर नैनो पार्टिकल से बल्क मटेरियल बनाया जा सकता है. Let us consider this is a atoms, and atoms make cluster or big atoms, and then big atoms make nano particle size atoms, nanoparticles. So top down bottom up method work on this principle. It is a atoms and is cluster, and it is a nano particle size. So there is a two method, top down approach and bottom up approach. We know that the size of atom in size of atom 0.1 नैनोमीटर टू 0.5 नैनोमीटर. ठीक है 0.1 नैनोमीटर टू 0.5 नैनोमीटर. दैट मीन्स 1 into 10 to the power minus 10 मीटर to 5 into 10 to the power minus 10 meter. It is clear the atom size is small than the nanoparticles. Hence we can obtain by collection of the atoms make cluster and then nanoparticles, because क्योंकि size of nanoparticles is 1 nanometer to 100 nanometer. That means it have a 10 to the power minus 9 meter to
10⁻⁷ meter. Because it is a 100 nanometer, that means 10⁻⁷ meter. That means it is a big size. Compare then the size of atom. Hence we can obtain by the atom and molecules bulk materials. ठीक है. So there is a two technique. फिर इसके बाद हम एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स. एप्लीकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स. एप्लीकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल. फर्स्ट है इन टेक्सटाइल. इन टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग में नैनो पार्टिकल्स कैसे है. इफ़ मान लो इफ़ वी add the nano particle in cloth. यदि हम नैनो पार्टिकल्स को क्लॉथ में ऐड करते हैं तो क्या उससे क्या बेनिफिट होता है. तो फर्स्ट है डस्ट फ्री क्लॉथ्स. डस्ट फ्री क्लॉथ्स. वी नो दैट नैनो पार्टिकल्स हैव अ सेल्फ प्यूरिफिकेशन क्वालिटी. देन वी कैन automatically clear yourself. That means we can obtain dust free cloths and smell free cloths and wrinkle free cloths. So it is a benefit of nanoparticles in textile. ठीक है. नेक्स्ट है इन ऑटोमोबाइल सेक्टर. इन ऑटोमोबाइल सेक्टर. तो व्हाट इज़ द बेनिफिट इन ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑफ नैनो पार्टिकल. फर्स्ट है हार्ड. वी कैन मेक हार्ड ऑफ नैनो प्रोडक्ट्स. ठीक. हार्ड होता है एंड फ्यूल इफिशिएंट. नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोडक्ट बना के हम ज़्यादा इफ़िशिएंसी, ज़्यादा दक्षता के जो हैं डिवाइस मशीन हैं उसको बना सकते हैं. एंड मोर स्ट्रॉन्ग. क्योंकि हम जानते हैं कि जो नैनो पार्टिकल्स होता है वो बल्क मटेरियल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. उससे हम अधिक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बना सकते हैं. एंड कंप्यूटर सेक्टर में इन कंप्यूटर बेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी. इस सेक्टर को नैनो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर सेक्टर में ज़्यादा डेवलपमेंट प्राप्त कर सकते हैं. स्मॉल साइज कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस. क्योंकि नैनो पार्टिकल्स छोटे साइज में कार्य करता है और छोटे साइज में हम पार्टिकल्स के को कंप्यूटर के पार्टिकल्स को और इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स को बना सकते हैं. और दूसरा है फास्टर स्पीड. नैनो पार्टिकल्स से फास्ट स्पीड के डिवाइसेस बना सकते हैं. अभी जो हमारे सेमीकंडक्टर चिप होते हैं इंटेल 8085 इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी पढ़ रहे होंगे. तो जो माइक्रो प्रोसेसर और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो 10⁻⁻6 मीटर के नीचे के जो टेक्निक हैं उस टेक्निक में बने हैं. अब जैसे 10⁻⁹ मीटर में जब डिवाइसेस बनना प्रारंभ हो जाएगा तो उस स्थिति में हमारे जो कंप्यूटर रहेंगे उनकी साइज और छोटा हो जाएगा और उसका स्पीड और बढ़ जाएगा. और उसके है एक मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब डाटा स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा. डाटा स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी. फोर्थ है मेडिकल फील्ड में आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी वी कैन एबल टू स्टडी ऑफ DNA. Because the size of DNA of human is 2 to 12 nanometer, therefore it is a simple way to study of
DNA ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड ऐसे मटेरियल्स और क्या मेडिसाइंस बनाने में भी नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं। सो नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। डिसएडवांटेज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी के एडवांटेज बहुत सारे हैं, पर कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। नैनो टेक्नोलॉजी हैज़ राइज द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ, बट द टाइम इट हैज़ इंक्रीज द पॉपुलेशन इन द वाटर एंड एयर। It has increased the population in water and air, and the population case of nanotechnology is known as nanopopulation. Nanopollution, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी से जो पॉल्यूशन होती है उसको नैनो पॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो ये वाटर्स और एयर्स को पॉल्यूट कर सकता है, उसको प्रदूषित कर सकता है। नेक्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी हैज़ मेड एटॉमिक weapon एंड पावरफुल एटॉमिक बम्स एंड दैट इज़ अ मोर डेंजर, ठीक है। weapon एंड एटॉमिक बम नैनो टेक्नोलॉजी के डिस्कवर के बाद और बनाना इजी हो गया है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी है वो एटॉमिक साइज़ पर ही स्टडी किया जाता है, तो उससे और इजी हो जाता है, ठीक है। कंक्लूजन, इन दिस वे वी सी दैट नैनो टेक्नोलॉजी इज़ अबाउट टू इफेक्ट एवरी ह्यूमन लाइफ। और नैनो टेक्नोलॉजी का जो डिस्कवर करने का मेन अवधारणा मानव के जीवन को आसान और सुविधा युक्त बनाना है, ज़्यादा अच्छा से बनाना था। तो इसने नैनो टेक्नोलॉजी ने मानव के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है, जैसे कंप्यूटर के सेक्टर में भी, कपड़े उद्योग में और मोबाइल सेक्टर में, इसके मेडिसिन के क्षेत्र में, और हर क्षेत्र को यह प्रभावित करता है, ठीक है। We have great opportunity to make things small in size, light in weight and strong in strength। तो ये क्वालिटी है जिसे नैनो टेक्नोलॉजी के मानव के जीवन में बहुत ही उपयोगी है। और लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो एटॉमिक वेपन के रूप में बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो सतर्कता के साथ नैनो टेक्नोलॉजी मानव जीवन में बहुत आधुनिकता ला सकता है। थैंक यू।